السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم فقهنا فی الدین وبک نستعین، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم ونور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ سورہ توبہ نواں سورت ہے، نویں سورت، آیا نمبر 35، صحیح؟ آیا نمبر 35، 34 ہو گیا تھا نہیں؟ توبہ 34 ہو گیا تھا، جس میں ایمان والوں سے بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ آمنو مسلمانوں سے ہی کہا جا رہا تھا کہ یہ جو احبار ہیں اور یہ رہبان ہیں، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں بالباطل، باطل طور پر، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو یکنزون الذھب، یکنزون، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کنز، کنز، کنز کسے بولتے ہیں؟ خزانہ۔ یکنزون، اب اردو میں اگر آپ لکھیں تو جو خزانہ، وہ خزانہ جمع کرتے ہیں، اب اسے لیں تو آپ والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون، وہ خزانہ جمع کرتے ہیں، ذہب والفضہ، سونے چاندی کا۔ ہاں؟ اب اتنا بولنے کے بجائے یہ زبان کی یہ دیکھیے خوبصورتی، یکنزون اس میں آ گیا، مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر سالم کا ہے۔ مضارع کا یہ کیا آیا نشانی؟ یا آیا۔ اب یہ بھی آپ یا نکال دیں اور وہ نون نکال دیں تو کیا بچا رہے گا؟ یہ یا بھی مضارع کا صیغہ ہے، وہ نون جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو اب درمیان میں کیا بچتا ہے؟ کنز بچتا ہے نا، کنز۔ یکنزون، وہ جمع کرتے ہیں کیا؟ کنز بولے تو خزانہ، وہ خزانہ جمع کرتے ہیں کس کا؟ سونے کا، سونا اور چاندی کا، چاندی کا۔ اور نہیں خرچ کرتے۔ لا ينفقون، ہاں ضمیر کس کی ہے؟ سونے چاندی کی طرف یا کنز کی طرف؟ کنز بولے تو خزانہ، نہیں خرچہ کرتے۔ لا ينفقون، لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے نام میں نہیں خرچ کرتے۔ فبشرہ بعذاب عظیم، ان کو عذاب عظیم کی خوشخبری سنا دو اے نبی۔ اب آگے اسی بات پر ہے کہ یہ جو خزانہ ہے، جو بھی تمہارے پاس مال متا ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا رول ہے۔ اب اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے ابو ذر غفاری کا۔ ابو ذر غفاری کو آپ جانتے نہیں؟ ان کے متعلق واقعہ، ابو ذر غفاری جو ابو ذر قافلے سے تھے، ابو ذر ایک قبیلہ، وہ قبیلے کے تھے۔ اچھا، آگے کی آیت میں آ رہی ہے، اس کو پڑھیں گے ہم۔ آگے کی آیت دیکھیے، یوما یحما، یحما، ہم، ہاں میم بھی آتا ہے، ہاں میم میم بھی آتا ہے، حمیم آتا ہے نا بہت بار۔ دو دخیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے؟ گرم گرم کھولتا پانی، اور کیا؟ وہ کانٹے دار، وہ جو وہ ہوتا ہے بہت خراب، ان کی غذا ہوتی ہے وہاں پر، بہت بڑا خراب مہمان نوازی کی ہوتی ہے۔ اس میں ہم ورڈ آتا ہے حمیم، حمیم بولے تو گرم، گرم پانی۔ اسی سے حمیم گرم کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آپ کو صرف روٹ ورڈ بتا دے رہی ہوں، ایکچولی یہ غلط معنی میں ہے، یہ کیا یہ منفی پہلو ہے اس کا، لیکن جو ہم ورڈ ہے نا، اسی سے حمیت بھی ہے۔ حمیت کئی کو بولتی ہیں اردو میں، حمام بھی اسی سے ہے۔ ہاں، حمام بھی اسی سے ہے۔ حمام میں کیا ہوتا ہے؟ نہاتی، کس سے نہاتی؟ یوزلی گرم پانی سے نہاتی۔ حمام بھی اسی سے بنا ہے، ہم سے ہی بنا ہے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے میں بتا رہی ہوں یہ سب۔ ہم
हमीम, हमाम, हमियत। हमियत क्या? जज्बात की गर्मी। अब आपको कोई, हाँ कोई अच्छा है कॉमन ले लेंगे, कोई माँ की गाली दे दे किसी को तो क्या होता है बोलो? जज्बा जोश आ गुस्सा जाता आ जाता है, जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, है। से गुस्सा आ ये जाता है। लंगड़ा लुल्ला अपाहिज मार भी नहीं सकता, कुछ बात भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं रहती, फिर भी क्या करता है उन्हें? जोश गुस्सा से दिखाता है, जोश गर्म हो दिखाता जाता है। है, नहीं सुर्ख हो जाता है, नहीं उसका चेहरा, जोश जी। से गर्मी पैदा हो जाती है, जज्बात में उसके गर्मी पैदा हो जाती है। हमियत भी उसी से है। जो गीरत का दूसरा लफ्ज है, गीरत ये दर्जात है उर्दू में। गीरत एक दर्जा जो थोड़ा कम है, हमियत उससे बड़ा दर्जा, खव्वल उठता है, खून खव्वल उठता है। अब एक बात ले लें, आजकल जो मुसलमानों की हालत है वो किस वास्ते है? जो गुजर रहा है, जो जैसा भी इस्लाम चल रहा है मुसलमानों में, हम लोग आराम से हैं, हमारे शब रोज आराम से चल रही। हालांकि सूद का बाजार गर्म है, रुश्वत का बाजार गर्म है, हर जगह दौर दौरा है बुरे कामों का, फिर भी हमारी हमियत जोश नहीं जागृति नहीं आ रही। जग। हाँ, हमारी हमियत नहीं है, हमें हमियत नहीं है। हमारी हमियत गवारा कर रही है क्या? बैठे रहे, आराम से बैठे रहे, कोई बात ना करें, किसी को ना टोके, आराम से देखते रहे। इसके मुताल्लिक भी बहुत बड़ी वईद आई है। मैं ये हमियत के वास्ते समझा रही हूँ, लेकिन पिछली आयत में इसके मुताल्लिक भी गुजर गया कि जो खामोश तमाशाई बैठे रहती हैं, जो देखते रहती हैं कि अल्लाह के तालीमात की पामाली हो रही है, फिर भी खामोश रहती, उनके ऊपर भी पूरा पूरा वबाल है, जैसे कि करने के उतना चुबाल है। जो दूसरा कर रहा है, खामोश तमाशे जो बैठा है, उसके उतना ही वबाल है, ही इज ऑल्सो इक्वली रेस्पॉन्सिबल। अब यहाँ देखिए, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा। क्या करेंगे? तापे जाएंगे, दागे जाएंगे, तुकवा दागे जाएंगे, गरम सलाख कर को जो दाग थी ना, वो युहमा गरम करके, अलैहा उस पर, फी नारी जहन्नमा जहन्नम की आग में, फतुक्वा बिहा उससे उनको दागा जाएगा। किससे दागा दाग जाएगा? किससे? इससे पिछली आयत में आ गया जहाबा फिजा। क्या चीज वो? सोना और चांदी। वो सोना सोना चांदी। कलेक्ट हाँ करते हैं विदाउट गिविंग ज़कात। हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो भी मैं आती हूँ वो बात पर भी। हम्म सोना चांदी हम्म रखना मना नहीं है, हम्म इसके मुताल्लिक एक वाकया भी है, उसके पीछे उसके रूल्स भी है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सोना चांदी जो भी लोग ये जमा कर रहे हैं ना, उनके ऊपर, उनको सोना चांदी जो जमा करती उसकी ज़कात नहीं देते, हराम हलाल का नहीं ख्याल करते हुए जमा करती, उनको क्या करता है अल्लाह? वही सोना दोनों चांदी तपा कर यानी भट्टी में डाल पिघला कर कर, उसे पिघला निकाल कर। कर उसी से तुकवा, तपा या दागा जाएगा, हम्म, तुकवा दागा दाग जाएगा, डाल बिहा जिबाहुहुम उनकी पेशानियों को। पेशानी पर। तुम क्या बोलती पेशानी को? नाम भी रखा जाता है ना, जबीन, जबीन जबीन। बोलते हैं ना। माँ जबीन। माँ जबीन। माँ जबीन बोले तो चांद के जैसी पेशानी, माँ बोले तो चांद। जबीन जिबाह, जुनूबुहुम और उनके बाजू, जुम्ब, जीन नून बा, जुम्ब। वाह। जुम्ब बोले तो पहलू, ऐसा सोती है, राइट साइड पहलू या लेफ्ट साइड पहलू, और उनके पहलुओं को भी, उनके साइड्स को भी तपाया दागा जाएगा। वो जुहूरिहिम पीठों को भी, पीठ, पीठों को पीठ। भी। हाजा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनिजून। ये जो भी तुम जमा कर रहे थे ना उसका मजा चखो। कहा जा रहा है कि जिस दिन उस दौलत को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उस दौलत का यानी उस खजाने को, वो जो चांदी सोने के खजानों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उन लोगों की पेशानियों को, उनकी करवटों को, राइट लेफ्ट करवटों को, और उनकी पीठों को पीठ को दागा जाएगा, दागी जाएंगी। और कहा जाएगा कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा। जमा रखा था। अब तको इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर जमा कर रखते थे, जक़ात भी नहीं देते थे, और जब उसको हासिल करने का वो था तो हराम हलाल को सा भी सोचे नहीं, रुश्वत से लिया या सूद से लिया, जो भी जिस तरीके से भी हराम तरीके से लिया, तो उसको तुम
चखो, अब उसका मजाक चखो। अब इसमें एक वाकया आ रहा है अबू जर गफ्फारी का। अबू जर गफ्फारी का क्या मौक़िफ़ था बोले तो उनका वाकया भी मैं बयान करती हूँ। उनका ये कंटेंशन क्या था, मौक़िफ़ क्या था। सोना चांदी मुतलकन हराम है जमा करना। अगरचे कि उनका ये जो ये था कंटेंशन वो गलत था। इससे क्या हुआ, वहां मदीने में फितना फैल गया। अब लोगों में इख्तलाफ हो गया, भाई हमें मेहनत से कमा रही, मेहनत से ले रही, रख रही, ज़कात भी बराबर दे रही, ये हजरत मुतलकन हराम है, एब्सोल्युटली हराम है, रखना ही नहीं है, ये क्या बात है। थोड़ा इख्तलाफ हो गया और एक तनाज़ा पैदा हो गया लोगों में और एक फितना उठने लगा। तो हजरत उस्मान गनी का जमाना था, दौरे खिलाफत। हजरत उस्मान गनी ने क्या किया, इन्हें कुछ आइडिया है? अत्याचार। हाँ? हम्म, जिलावतन कर दिया, जिलावतन का हुक्म दे दिया। हालांकि ये जलील उल कद्र सहाबी, इनके मुतालिक मैं थोड़ा बयान करती हूँ आपको वाकया। अबू जर गफ्फारी का जानना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मुतालिक क्या क्या कहा करते थे, और ये पांचवें या छठे इंसान हैं जो इस्लाम लाए। पांचवें या छठे, यानी बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में, नबूवत की इब्तिदाई दौर में। तो इनको जिला वतन का, जिला वतन बोले तो यहाँ से निकल जाओ, दूसरी जगह जाको रहो, तुम्हारे से यहाँ बस फितना फैल रहा है। अच्छे बातों में ही उन्होंने हुक्म दिया कि आप जाएं, मदीने से निकल जाएं बराए मेहरबानी, और जाकर कहीं और सेटल हो जाए, कहीं और जाकर रहें। तो ये कहाँ जाकर रहे, मदीने से बाहर निकल गए, एक सहरा, सहरा में जाकर अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहाइश पजीर हो गए। अकेले, एक फैमिली, तन्हा एक फैमिली, जो रहना मुश्किल सा है। तो इतनी हद तक आ गया था। अब इनके मुताल्लिक सुनिए, अबू जर गफ्फारी, अबू जर एक कबीले का नाम, डाकुओं का कबीला, जो रहजनी कहाँ करती, हाईवेज पे करती ना, नेशनल हाईवेज पे या बड़े बड़े चौराहों पर करती ना, उन जो तिजारती काफिलों को लूटती, इनका काम ही ये था, ये कबीले का काम ही ये था। अबू जर वो कबीले का नाम था और उसके ये फर्द थे। इन्हों कैसे थे, इनके मुताल्लिक बताया जाता है, बड़े तवीलुल खद, तवीलुल खद बोले तो ऊंचे, बहुत ऊंचे। बहुत ऊंचे, बहुत लंबे थे, और एक अच्छी पर्सनालिटी के थे, बातचीत में भी अच्छे थे, देखने में भी अच्छे थे। तो इन्हों एक मानी हुई शख्सियत थे, अपने कबीले के एक मानी हुई शख्सियत थे उन्हों। इनका क्या होता है, एक वक्त इनको मालूम होता है ये दो बहन भाई रहती है, इनके भाई का नाम अनीस और एक भाई का नाम अनीस। इनका नाम क्या, अबू जर गफ्फारी। ये अबू जर गफ्फारी इनका नाम नहीं है, क्या है इनका नाम, जनता, जनता इब्ने इब्ने जनब, ऐसा कुछ नाम है इनका, लेकिन फेमस हो गई है अबू जर गफ्फारी के नाम से। तो इन्हों इनके भाई को भेजते हैं, जब इनको मालूम होता है कि कोई है मक्का में। इन्हों तो कहाँ ही बोलो, शाहरा को है इन्हों, शाहरा पर इनका कबीला बसा हुआ है। तिजारती काफिला जहाँ से शाम को जाता है, जहाँ से यमन को जाता है, उस रास्ते में है। और इनका काम ही, इनका पेशा ही यह था कि काफिलों को लूटते और अपनी गुजर बसर करते थे। ये काफिला फेमस था, ये राजनी करने वाला, डाकाजनी करने वाला, लुटेरा काफिला, काफिला या कबीला ये करको ये फेमस था ये। तो जब इनको पता चलता है कि एक शख्स है कोई जो मदीने में नबूवत का दावा कर रहा है, और एक बात इनके मुताल्लिक ये फेमस थी कि ये इस कबीले में कसरत से ऐसे लोग थे जो बुत परस्ती में नहीं थे, बुत परस्त नहीं थे, बुतों की पूजा नहीं करते थे, ये भी नहीं करते थे, बुतों को कभी पूजा नहीं इन्होंने। तो जब मालूम हुआ कि ये है जो वहदानियत की अलमबरदारी कर रहा है, कोई शख्स नबूवत का दावा कर रहा है, और ये खुदा की, ये तौहीद परस्ती की बात कर रहा है, तो इनको कुछ ये पैदा होता है, शौक पैदा होता है कि जाकर देखें कौन है क्या है। अपने भाई को भेजते हैं, पहले जाकर फाइंड आउट करो ये शख्स कौन है। तो इन्हों जाकर पूरा रिपोर्ट ला कर देती हैं, जो इनको बहुत मुतासर होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, और इन के मुताल्लिक कहा जाता है कि ये छठे या पांचवें या छठे हैं। इनका नाम जिंदाब, जिंदाब बिनते जिंद,
जिंदा बिनते जिंद। बाद में इनका वो अबू जर गफारी बोल को फेमस है, और इसी नाम से सहाबी का नाम यही है, और बड़े जलीलुल कद्र सहाबी के हैसियत से ये बहुत फेमस है इस्लाम में। तो इनको मालूम होने के बाद क्या करते हैं ना, जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं, और वहाँ जाकर जो वहाँ का आलम देखते हैं कि ये बहुत ही लोग दबे हुए परेशानी के आलम में डर खौफ के मारे इस्लाम ला रही, और छुप छुपा कर सलाम अपना रहे इस्लाम में रख रही, छुपा कर रख रही, किसी के सामने जाहिर नहीं कर रही। तो इनको परेशानी होती, क्यों? जबकि हक है, ये भी तौहीद परस्त है, ये तौहीद परस्ती में नहीं थे, लेकिन बुतों की परस्तिश भी इन्होंने नहीं की थी। तो इनको बड़ा शौक था कि ये कोई तौहीद परस्त है, कोई तौहीद की बात कर रहा है, तो उस पर आ जाना चाहिए, ये क्यों लोग छुप छुपा कर रही। तो ये लोग क्या करती, अलल ये लान जाती, अलल ये लान नहीं, मैं जाकर लोगों के सामने कर, तो अलल ऐलान कर, तो जाकर लोगों के सामने अनाउंस करती कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते थे। रसूलुल्लाह पहले इन्हीं के जबान से निकला। कहा जाता है, रिवायतों में आता है कि पहले नबी बोलते थे, रसूलुल्लाह का ये नहीं आया था, अभी कोई भी इस नाम से नहीं पुकारे थे। पहला शख्स यही है जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह भी साथ ऐड करके बुलंद आवाज में मक्के मुकर्रमा में पहली बार मुनकरीन के लोगों में जाकर, उन लोगों में बीच में जाकर ये अनाउंस किया था। तो क्या हुआ, लोग सुनते ही क्या करे, इन्हों मालूम नहीं, अबू जर फैमिली के ही घर को, अबू जर कबीले के ही घर को मालूम नहीं, लोग इन पर टूट पड़े, मार कूट जदोकूब करने लगे। तो हजरत अब्बास जो करीब खड़े हुए थे, ईमान तो नहीं लाए थे अभी, लेकिन वो आकर जोर से कहने, उनकी आवाज बहुत जोर की है, कहाँ मालूम हुआ हमें, हजरत अब्बास की आवाज बस कहाँ मालूम हुआ ये? करने अनाउंसमेंट करने मक्के में हाँ, जंग हुनैन में, उनके जब हुनैन इधर में। उधर तत्तर हाँ, बत्तर हो जाती है, फौज भागने लगती है, लोग दरहम बरहम हो जाते हैं ना, तब इनकी आवाज की है बुलंद आवाज जो मीलों तक चली जाती थी, उन्हों बुला को लाती ना, तो इन्हों जोर से बोलती लोगों में, जो मजमुआ टूट पड़ा था, इनको मारने के ऊपर तुला हुआ था, तो इन्हों बोलती, लोगो रुक जाओ, हाथ रोक लो, तुम्हारे पता है ये शख्स किस कबीले से है? अबू जर का कबीला है इसका, अबू जर कबीले का शख्स है ये। एकदम रुक जाती हाथ, कई को डर खौफ दहशत तारी हो जाती है, ये कबीला लूटने वाला, अबू जर कबीला फेमस रहजन डाकू लुटेरा कबीला, तुम्हारी खैर नहीं अगर इसे मारे तो रुक जाती। वो पांचवें छठे आदमी इन्हों होती। बाद में है ना इनका बड़ा ही बहुत ज्यादा इनके कारनामे हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा जो होता है वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन ना वो इस वास्ते हुआ कि इन्हों अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे कि माल, ये जो चांदी सोना, ये जो माल है, ये बिल्कुल मुतलकन रखना नहीं, बोल को इन्हों अड़े रहे अपने ऊपर, अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, जमे रहे, थोड़ा लीनियंस देने के वास्ते, थोड़ा ढील देने के वास्ते इन्हों तैयार नहीं थे। तो उसके वास्ते है ना इनको निकालना पड़ा, वरना तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे, और बहुत ही इनके कारनामे भी हैं। ये शमसी किसके है खिलाफत में बोले सो आप? उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। तबूक का ही है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साल का पीरियड, उसके बाद हजरत उमर खत्ताब का 10 साल का पीरियड, उसके बाद हजरत उस्मान गनी। तो 10 से 12.5 फिर ये 2.5 कितने हुए, 14-15 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 14-15 साल है। लेकिन इन्हों आए कब थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से? जवानी में आए थे, होंगे अब इन्हों कुछ 50 साल के होंगे, या भी कम ही होंगे। तो ये हजरत उस्मान गनी का पीरियड है। तो उसके बाद का इनका वाकया और कुछ है। हाँ, उसके बाद तबूक का वाकया पेश आता है। तबूक का वाकया पहले पेश आया, फतेह मक्का का वाकया बाद में पेश आया। नहीं, पहले क्या हुआ, सुलह तबूक में हुदैबिया जंग है। हुआ। सुलह हुदैबिया से लीजिएगा आप तो आसानी से पहुंच जाती सीक्वेंस पे। सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद उन्होंने ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे। हाँ, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ एक दरमियान में क्या सुलह हुदैबिया में क्या हुआ बोले तो जो दब कर ये करे ना, ह्यूमिलिएट
इंटरेस्टिंग ये थे क्लॉजेस बहुत। तुम्हारे पास कोई आया तो भेज देना, हमारे पास कोई आया तो हम भेजेंगे मान नहीं। लिया ऐसे एग्रीमेंट। बहुत ह्यूमिलिएटिंग क्लॉजेस थे, फिर भी मान लिया। और उसे अल्लाह बोल रहा है, फतेह मुबीन बोल रहा है, इन्ना इन्ना फताना फतह मुबीना, फतेह मुबीन दे रहा है ये बेस है, यहाँ से ही तो आया। आयत सूर्य हम्म फतह में सब सूर्य सूर्य फतह फतह में, हाँ, फतह में इन्ना फतहना लका फतह मुबीना किसे बोल रहा है? मुबीना। बोले तो अल्लाह हुदैबिया को बोल रहा है, सुलह हुदैबिया को। तुम समझ रही कि ये हजरत उमर परेशान हो गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कई को हमें ऐसा कर रही हैं, क्या तुम क्या आप बरक नबी नहीं, क्या अल्लाह एक नहीं, क्या हमारा दिन सही नहीं, क्या ये सारे क्वेश्चंस की बौछार करने लगे। बाद में उनको बहुत खल्क रहा, सारी जिंदगी खल्क रहा, मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये जो सुलह हुदैबिया हुआ, उसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुनूब की तरफ से बहुत आराम मिल गया। अब वो मक्का की तरफ से कोई आएगा नहीं, कोई लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि मुआहिदा हो गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, भेजते रहे, ये क्या मुहिम भेजते रहे। और कई इनके जो सहाबा करम थे, जो अरबी जानते थे, अरबी तो सब जानते थे, जो कुरान की तालीम जानते थे, उनको भेजते थे कि उन्होंने जाकर तालीम दे। और उनके नाम में ये खत भी भेजते थे, नामाबर होता था जो लेकर जाता था। तो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नामाबर को इसके पास भेजते, क्या ये रोम। रोम कहाँ था? मदीने से बहुत दूर था। मदीने से कितना दूर है? 700 और 800 किलोमीटर कुछ दूर था, बहुत दूर था। और वहाँ एक जो ये था, रोम सबसे बड़ी सल्तनत, सुपर पावर, और उसके अंडर में बहुत से थे जो अतराफ के कबाइल थे। उन्होंने जैसा जिजिया देको रहना है ना, वैसा जिजिया देको रहते थे। वहाँ एक गवर्नर था, एक करीब की सल्तनत में एक गवर्नर था जो जिजिया रोम को दिया करता था, और उसकी मातहती कबूल कर ले को था। अब यहाँ भी इस्लामी सल्तनत में अगर जिजिया देको रह रही तो मातहती कबूल कर ले रही ने, वी आर अंडर यू करको, वी आर अंडर यू, वी आर नॉट अगेंस्ट यू, वी ओबे यू, योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बाइंडिंग अपॉन अस कर कुछ न थे होना। तो इसी तरीके से एक बाज गुजार बोलते हैं उसे, बाज गुजार जो जिजिया देता है। तो वो एक सल्तनत थी, वो एक गवर्नर था, अतराफ के गवर्नर्स ही थे, और उन्होंने अंडर दी सुप्रीमेसी ऑफ रोम, रोम सुपर पावर है। तो इसके ये गवर्नर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नाम है उसका, उसके नाम में एक खत भेजते, सबको भी भेजे, सब भी कबूल कर लिए, थोड़े कबूल करे, नहीं कबूल करे सो उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं करे, उसे नामों पर को मार देना या लेटर फाड़ देना, ऐसा कुछ भी बेइज्जती का या ह्यूमिलिएटिंग काम कुछ भी नहीं करे। लेकिन ये गवर्नर क्या करता है, जो जाति, जो नामों पर एम्बेसडर है, जो एलची को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजती, उसे मार देता है, उन्हें कत्ल कर देता है, और ये लेटर की भी कोई वक्त नहीं करता। तो क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज मिलता है, इन्हें आपका ये जो आया था मैसेंजर, उसे कत्ल कर दिया को। तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको जमा करती और बोलती कि ये ऐसा करना एक ऐलान है जंग का। अब हमें कितनी भी थोड़ी तादाद में हो, हमें लड़ना है, ये जंग लड़ना है, जाना है। तो क्या करती हैं, एक 3000 का लश्कर तैयार करती हैं, और उसमें जैद बिन हारिस आपके साथ जो थे, पहले आपके मुंह बोले बेटे थे, उसके बाद गुलाम थे, उसके बाद आजाद करदा, उसके बाद अपनी पुपेरी बहन से शादी किया था लेकिन उनसे टूटा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैनब से शादी की, ये सारा वाकया आपको मालूम है। जैद बिन हारिस को पहला सिपह सालार मालूम है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अंदेशा है कि अगर मैं ये गवर्नर के खिलाफ जंग के वास्ते भेजूंगा तो क्या होगा, इन्हें चूंकि बाज गुजार है, जिजिया दे रहा है, अब जिजिया दिया, जिजिया लिए तो उनके लाइफ की, उनके जान और माल का प्रोटेक्शन किसके ऊपर आता है? जो जिजिया लिए हुकूमत पर, उनके ऊपर आता है नहीं। तो हुकूमत किसके ऊपर आना? रोम के ऊपर आना। रोम के ऊपर एक एक बाइंडिंग हो जाती है, उन्हें शायद आ जाएगा, एक अंदेशा रहता है। तो 3 आदमियों को नामजद करती, एक तो जैद बिन हारिस, दूसरा बोलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर इनो परचम पकड़ने वाले, क्या बोलती हैं उनको, अलम बरदार, अगर इनो बरता शहीद हो गए तो दूसरे कौन ना, जाफर तैयार, अबी तालिब के बेटे, वो भी
शहीद हो गए तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा अंसारी। तो इन्हों अब्दुल्ला तीन के नामा करते, तीन के नामा बोलते। इतना अंदेशा है सो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तीन का नाम। जैद बिन हारिस चले गए तो अबी तालिब के बेटे जाफर तैयार, फिर वो भी चले जाफर गए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, तीन नामा हाँ, बोल देती। उसके बाद का नहीं बोलते। हालात का नक्शा कैसा पलटता है वहां। अब इन्हों भी थे, खालिद बिन वलीद भी थे, वो लश्कर में खालिद बिन वलीद भी थे। तो ये 3,000 का लश्कर गया तो आने की खबर सुनकर क्या हुआ, वो जो बाजगुजार बाज लेता था यानी जिजिया लेता था, तो रोम की फौजें आ गई। कितने की आई रोम की फौजें? 3,000 के मुकाबले में, 3,000 3,000 के मुकाबले में फौज आई कितनी मालूम है? 1 लाख की, 30 1 लाख। 1 लाख। 1/3 भी नहीं हुआ, कितना हुआ? 1/30। हाँ, 1 जी लाख कहाँ, 3,000 कहाँ। तो 3,000 अभी थोड़ा ये होने लगा कि क्या करें, क्या लड़ना है, जंग लड़ना है कि नहीं लड़ना है। लेकिन अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए। कम्युनिकेशन कैसा था तब? आपके जैसा फोन थे, इंस्टाग्राम थे, सोशल मीडिया था, क्या था? कुछ भी नहीं। किसी को भगाना, तेज रफ्तार इंसान को भगाना, उसके हाथों खत भेजना। अब उतना टाइम नहीं था, तो थोड़े जो जांबाज थे, जान फिदाकार थे, उन्होंने क्या करे, नहीं हमें लड़ेंगे। अब वो जो है वो जोश और खरोश, वो ये शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की शाही, ये जो उनके दिलों में था ना, कुछ भी नहीं होना, बस हमने जन्नत होना है, हमें लड़ेंगे, हम जाएंगे। हम छोटे कम रहे तो क्या हुआ, हम लड़ेंगे, हम शहीद ही हो जाएं भला, लेकिन हम लड़ेंगे। तो इसके वास्ते जो गए तो क्या हुआ, पहले जैद बिन हारिस उन्होंने शहीद हो गए, उसके बाद जाफर तैयार परचम संभाला, फिर वो शहीद हो गए, फिर अब्दुल्ला इब्ने रवाहा उन्होंने शहीद हो गए। अब जंग का हाल देखा खालिद बिन वलीद ने। खालिद बिन वलीद कई को फेमस फॉरवर्ड, जंग जी। जंगू आदमी, जंगजू आदमी, जंगजू दूर हाँ, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह बोलते सुने उनको। सोड हाँ। उनको लखब स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह करको नहीं, हाँ हाँ, सैफुल्ला सैफुल्ला उनका लखब। अल्लाह की फौज। हाँ बिल्कुल पते ना, बारकल्ला। तो इन्हों देखती जंग का हाल, अब लड़ने में कोई हिकमत नहीं है, अब लड़ना बेकार है। लड़ने में क्या होता है, जाने जाती। 3,000 में ऑलरेडी शहीद हो गए, 3 सिपाही सालार शहीद हो गए, और बहुत से भी शहीद हो गए। अब बची थोड़े, अब उन्हों भी जान गंवा लेती तो इन्हों क्या, वहां से निकलना भी मुश्किल। थोड़ी सी फौज है, सामने बड़ा लश्कर, 1 लाख का लश्कर है, निकलना भी मुश्किल है। तो इन्हों क्या करती, बड़ी हिकमत अमली से, इन्हों बड़ी काबिल नजर रखने वाले, बड़े जंगजू आदमी, बड़े स्ट्रेटेजिक पर्सन इन्हों। तो इन्हों क्या करे, एक हिकमत अमली से क्या करती, जान बचा को लेकर आ जाती, अपनी ये जो फौज होती है उसे सही सलामती के साथ बाकी बची हुई फौज को लेकर आ जाती, मदीना वापस लेकर आ जाती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही पता चलता है कि ऐसा सारे सिपह सालार मारे गए और इन लोगों का ये हाल है, ये ऐसा दंदनाते कर रहे हैं, चल रही, तो इनकी ये दबदबा, ये शान हमारी उखड़ गई है हवा। इस्लामी लश्कर का क्या हुआ, थोड़ा पसपाई हो गई ना, जद पहुंची पसपाई हो गई, तो लोगों में क्या होता है, देखो इस्लामी लश्कर हार गया, रोम से टक्कर लेने गया था, रोम का बाजगुजार था वो गवर्नर, वो सल्तनत, वो छोटी सी जो रियासत थी वो रोम की बाजगुजार थी, उसके साथ टक्कर लेने गए थे। अब ये बातें होती लोगों में, पसपाई हो जाती है। इमीडिएटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये लोग वापस आए तो आपने ऐलान कर दिया कि मैं खुद जाऊंगा, और नफीर आम कर दिया आपने, अब हो रही है। अब ये जो हुई अब तक का, उसका नाम क्या था, वो जो 3,000 का लश्कर गया, 1,000 के लश्कर सामने आया, उसका नाम क्या, जंग का, याद रखिए ये तारीख इस्लामी। जंग ये एक बार ही बताइए शायद, नहीं मोता, मोता हाँ मऊता नहीं, मोता। मोता एक प्लेस है जहाँ जंग हुई, जंगे मोता मोता, बहुत सख्त, मोचा। कोई ये ही नहीं था
कंपैरिजन ही नहीं था, कोई उनका उनका मुकाबिला ही नहीं था। 3000 कहाँ, 1 लाख कहाँ, अब तक ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जंगे मोता थी। जंगे मोता के बाद जंग होता है जंगे तबूक, गज़वे तबूक। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, मेरे साथ जो भी आए। पहले अब तक क्या होता था, ऐलान नहीं करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बताते भी नहीं थे। ऐसा हमेशा होता है कि ये जंगी स्ट्रेटेजीज ऐसे ही होती कि कहाँ जा रही, कैसा जा रही, किस जगह से जा रही, किस रूट से जा रही, ये नहीं बताया करते थे। पहले भी आप हिस्ट्री पढ़े तो मालूम होता है कि जंगों में ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है, और ये सही भी है। ये उनके ऊपर कोई वबाल नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लॉस। ये जंगी स्ट्रेटेजी से अपना सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब शुमाल के रुख में जाना होता था तो पहले जुनूब का रुख लेते थे, उसके बाद इधर पलटा खाते थे, सीधा नहीं जाते थे। लोगों को मालूम नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा बताते थे, पूरा नहीं बताते थे। लेकिन अब ये इसमें जंग तबूक में ये अल्लाह ने आम कर दिया कि हर 14 साल के बच्चे से ऊपर का हर जो भी है वो सब हिस्सा लेना है, और सब अपने जान और माल से भी हिस्सा लेना है, अपना माल भी लाना है। ये ऐलान आम था और बहुत ही शदीद हालात में किया गया था। कैसा था हाल वहां, एकदम बीच में क्या आता था, वो 700-800 किलोमीटर के दरमियान एकदम सहरा आता था। और यहाँ का क्या है, शदीद गर्मी का मौसम है। मदीने में शदीद गर्मी का मौसम है। ये गर्मी का मौसम इनके वास्ते खजूर पकने का मौसम होता था। जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतना फल ज्यादा अच्छा पकता है और अच्छी फसल होती है। तो अच्छा पक्को तैयार खड़ी हुई है फसल ले, और ये फसल उतारने के वास्ते कौन होना, मर्द लोग ही होना, औरतें ये काम नहीं कर सकती थी। तो ये ऐसी आजमाइश में अल्लाह मुब्तला कर दिया है। यहाँ मुनाफिक कौन है, मुसलमान कौन है, सबको अल्लाह दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, मालूम हो गया। तो ये लाने आम हो गया। सब लेकर आना था, सब ने लाया। इसके मुताल्लिक कई वाक़ियात थे, कई वाक़ियात फेमस हैं। ये कोई रात भर उसके पास कुछ भी नहीं था, रात भर मेहनत किया, कहीं जाकर मेहनत किया, उसको थोड़े खजूर मिले, एक टोकरी खजूर मिले, वो ला कर दिया। लोग बहुत सा सामान डाल कर थे, तो इन्हें एक थोड़े खजूर जो है वो ला कर दिया, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ला रहा है। उसकी पूरी मेहनत की कमाई, वो पूरी रात भर की मेहनत कमाई वो, और अपने बच्चों के वास्ते थोड़ा सा छोड़कर बाकी का सब ला लिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखे, उसका हाल देखे, उसका खुलूस देखे, उसकी नीयत देखे, और उसकी हौसला अफजाई के लिए क्या किया आपने, ये वाकया बहुत फेमस है। ये पूरे खजूर क्या किया आपने, ज्यादा माल जो आया था, सोना चांदी पैसे दिरहम दिनार, सब कुछ जो भी आया था सब लाना था। बेडशीट्स की भी जरूरत थी, कंबल की भी जरूरत थी, कपड़ों की भी हर चीज की जरूरत थी। क्योंकि लंबा सफर, कितने दिन होता है, कहाँ कहाँ पड़ाव डालना पड़ता है, कितने कितने दिन रुकना पड़ता है। लड़ाई हुई नहीं, लेकिन नहीं होती कर कोई यकीन नहीं था ना, यकीन नहीं था। लड़ाई होती है, कितने दिन होती है, कितने दिन रहना पड़ता है, तो हर चीज की जरूरत थी। तो ये सारा माल जमा खपा पड़ा है यहाँ पर, बड़े मैदान में या बड़े हाल में रख दिया होगा। तो उस पर क्या करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब लेकर अपनी मुट्ठी में फैला दिया, सब पर फैला दिया, और कहा कि ये माल बड़ी बरकत वाला है, ये सबसे ज्यादा बरकत लाने वाला, इसकी बरकत से ये माल भी अच्छा हो जाएगा। तो उसकी हौसला अफजाई की। ये वाकयात थे जो जंग तबूक के मामले में आए। उसके बाद क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी लगाते रहे बोली, हाई कोई लाने वाला, माल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ये चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है, लाओ सब लाओ। ये लगाते ही रहे, फिर भी लगाते रहे, आता रहा, फिर भी लगाते रहे। तो हजरत उस्मान गनी समझ जाती कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा की जरूरत है। एक बार ले लेकर आए, 2 बार ले लेकर आए, फिर भी अगर बोली चलती रही तो जाकर एक पोटली में बहुत से अशरफियां रखी हुई होती, वो लेकर आ जाती। अशरफी किसको कहा जाता था पहले, वो जो सोने के होते थे, सोने के कॉइन्स, बड़े सिक्के जो होते सिक्के, थे गोल्ड कॉइन्स, ना, हाँ, तो सोने, गोल्ड कॉइन्स। वो लेकर आती, वो एक थैली भरकर लेकर आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हाथ में लेती, और उसे आगे पीछे ऊपर नीचे उछालते रहती, और आपका चेहरा गुलनार होते रहता है, खुश हो जाती। अच्छा ये बहुत काम आएगा, ये जंग के काम आता है, जंगी जरूरतें इससे पूरी होती, तो खुशी हो जाती है। आप चलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर रहे,
मुनाफिकीन में बहुत से आती हैं। अब ये सारा मैं जो बयान कर रही हूँ ये सारा आपको इसमें भी मिलता है, अब आयतों में आता है। आपको मैं पहले ही बयान कर दे रही हूँ कि आयतें आपको आसानी से समझ में आ जाती। तो वहां क्या करती हैं, थोड़े मुनाफिकीन जो रहती हैं उनको ये सारे चीजें पेश आती ना। अब खजूर की फसल भी है, उसे भी उतारना है, सख्त गर्मी है, ये बर्दाश्त से बाहर है, अंदर आराम से बैठना, यहाँ बैठने के बजाय वहां कहाँ जाना। पहले ही 3,000 का लश्कर गया, सब मारे गए। वहां 1 लाख का लश्कर आया था, अब हमारा कितना है, 30,000 का है, ये कौन से मुकाबले में है। अब ये सारी चीजें उनके दिमाग में आती हैं, सब भी पसपाई मुनाफिकीन है जो जान नहीं सकती। उन्होंने जो मुनाफिकीन है उन्होंने ये सारी चीजें कंसिडर कर ले को पीछे पीछे रहती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती जो नहीं आ रही, कई को नहीं आ रही, व्हाट इज द रीजन। अब रीजन भी बोलना है, तो झूठे मूठे रीजन में झूठ मूठ के लेम एक्सक्यूजेस लेकर आती। हुजूर मेरी बीवी बीमार है, कोई दूसरा नहीं है देखने के लिए। हुजूर तो रकीकुल कल्ब, नरम मिजाज के, बहुत शफीक है, जाओ भी जाओ देख लो अपनी बीवी का ख्याल रखो, जाओ। उसको छोड़ दिया। आगे आ रहा है एक आयत आ रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं अल्लाह, अल्लाह तुम्हें माफ कर फरमाए आए नबी, लिमा जिनता, क्यों दिया उन्हें आपने इजाजत, क्यों दी। नहीं आना था उनको, नहीं आते, लेकिन कम से कम अगर नहीं आते तो आपके पास आकर उजुर लेकर इजाजत लेकर बैठ जा रहे ना। इनको क्या हो गया, एक एक्सक्यूज मिल गया, एक इजाजतनामा मिल गया उनको। ये नहीं होना था, इन्होंने नहीं आए तो कई को नहीं आए, वो बाद में मालूम होता आपको, ये नहीं आ रही और को मालूम होता, अब मालूम नहीं हुआ। अब क्या हो गया, उनकी मुनाफिकत पर पर्दा पड़ गया, आपसे इजाजत लेको आ गए, एक लेम एक्सक्यूज दे दिए, बीवी बीमार है या कुछ तंगी है या मैं बीमार हूँ, ये सब ला लिए। ये आया बहुत से मुनाफिकों का, उनका हाल भी अल्लाह मालूम करा दिया कि ये मुनाफिक हैं, ये मुसलमान हैं। कौन अल्लाह की राह में जानो माल खर्च करने वाले हैं, सर से कफर बन कर निकलने वाले कौन हैं, और कौन सिर्फ ऊपरी ऊपरी ईमान लाने वाले हैं, जैसा आजकल आजकल के मुसलमानों का है, सिर्फ ऊपरी ईमान, खाली पीली दावा, जबानी कलामी ईमान, अंदर क्या भी नहीं, रुश्वत है, सूद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कलमा गो। तो इन लोगों का भी ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाओ जाओ दे दिया, अब से 30,000 का लश्कर लेकर निकले। वहां पर हरखल जो था, हरकिलियन, हरकिलस, क्या नाम उसका, हरकिलियस, उर्दू में हरखल, वो देखा कि उसको थोड़ा जो इल्म था, ईसाई था जो इल्म था, उससे उन्हें जान गया कि इनके साथ टक्कर लेना मेरे वास्ते जानलेवा होगा, ये नबी है बरहक है, इनके अगेंस्ट में नहीं जाना, तो वो नहीं आया। बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी ज्यादा, बॉर्डर पर भी फोर्सेस नहीं थे। तो ये क्या हुआ, बगैर जंग लड़े के अल्लाह ने कामयाबी दे दी। और बहुत बड़ा फायदा इसका ये हुआ कि ये जो सल्तनत रोमा थी, रोमन सल्तनत, रोमन एम्पायर, जिसका बड़ा चर्चा था, बड़ा दबदबा था, अब वो जो हवा उखड़ी थी जंगे मोता में इस्लामी लश्कर की, कि ये देखो टक्कर लेने गए थे, सब मारे गए, पूरे सिपाही सालार मारे गए, जान बचाकर जो बचकर आ गए हैं, ये जो हवा उखड़ गई थी इस्लामी लश्कर की, वो बहुत अच्छी तरह से शान और शौकत के साथ, दबदबे के साथ, पूरे अपनी कुव्वत के साथ बहाल हो गई। और इस्लाम का दबदबा हो गया कि देखो, हरखल नहीं आया, हरकिलस नहीं आया इस्लाम के अगेंस्ट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के अगेंस्ट। हालांकि ये 30,000 का है और वो तो मोता में 1 लाख का आया था, उससे ज्यादा भी आ सकता था, अब नहीं आया। कोई बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी रोकने वाला नहीं था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर वहां पर, थोड़े दिन रहे, चंद दिन रहे, वो मुझे कितने दिन रहे, कितने दिन आपने वहां पर वकूफ लिए, यानी वफद आए ना, बहुत से डेलीगेशन आए, अतराफ के डेलीगेशन आए, उन्होंने मुआहिदा साइन किया, बहुत बड़ा फायदा हुआ, इस्लाम को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अतराफ के वो जो रोमन एम्पायर के अतराफ के वो जो भी थे, वो जो बाजगुदार गवर्नर था, वो भी, वो दूसरे भी आकर आपसे मुआहिदा किए और बहुत से इस्लाम भी ला लिए। ये फायदा किसका हुआ, जंगे तबूक का, गज़वे तबूक का, जो अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। धाक बैठ गया इस्लाम का, धाक, इस्लाम का बोलबाला, वो जो थोड़ा पसपाई हो गई थी, वो बहाल हो गई, बरकरार हो गई। इसके डिटेल्स आ रहे हैं।
इस्लाम को तो जबरदस्त गलबा मिल गया, ये तबुक की ये जो जंग हुई उसके बाद इस्लाम को जबरदस्त गलबा मिल गया। ये सारे डिटेल्स आपको अब भी आते हैं इंशाअल्लाह, आगे चलेंगे। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम जुनूबुहुम जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये हुआ था, ये एक बात क्या आई थी, ये जो जमा करना चांदी सोना इसके मुताल्लिक वो अबू ज़र गफ़ारी का कौल आया था, और वो जो डटे थे जमे थे उससे जो फितना हो गया था उसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। हाँ, एक बात बयान करना था, जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी क्या होता है, ये जंग तबूक में उन्हों भी जाती, उनका बीच में एक वाक़िया है वो मेरे से छूट गया, और ये कौल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जो बाद में प्रोफेसी वो पूरी हो गई, वो उसके मुताल्लिक भी बयान करना था। वो क्या हुआ था बोले तो, ये जो लश्कर जा रहा था उसमें एक मामला ऐसा पेश आया अबू ज़र गफ़ारी के साथ, वो सब कुछ उठा के लाए थे, अपना सब कुछ लाए थे, और आपके साथ आपके ऊंट पर सवार थे और ऊंट पर माल भी था। लेकिन एक जगह क्या होता है, ऊंट इतना थक जाता है, सबके ऊंट थक गए थे, सब दुबले हो गए थे, ऊंट सब दुबले हो गए थे, उनको चारा नहीं मिल रहा था, कितना बड़ा सफर था ये, और सहरा भी था, गर्मी भी थी, तो इनका ऊंट जो बैठा उठा नहीं, फिर उठने की उसमें हिम्मत ही नहीं, इन्हों उठा ही नहीं सके उसे। तो इन्हों क्या करती हैं, एक पड़ाव के बाद जो लोग चलने लगते हैं, इनको देखा नहीं, लोग आगे बढ़ गए, अब नेक्स्ट मंजिल तय है, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है करको नेक्स्ट मंजिल तय है। अब इन्हों क्या करती हैं, अब क्या करना, ऊंट उठ रहा ही नहीं, जाना तो है, जंग में शिरकत करनी तो है, आप ही खुद उठाती हैं, अपने कंधों पर उठाती हैं, सारा माल जो भी था जो भी लेकर आए थे सारा उठाकर चलते बनती, चलती 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 अकेले चलती, बाद में जहाँ पड़ा हुआ कितने मील क्या था वो अल्लाह आलम। तो वहां जाकर अपने काफिले से मिलती जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक्स्ट पड़ाव नेक्स्ट मंजिल पर पड़ाव डाला था। तो इनको आते हुए दूर से आते हुए देखकर लोग बोलती, अरे अबू सर कहाँ रह गए थे, ये अब आ रहे हैं, ये कैसे अकेले आ रहे हैं, ये चलते हुए आ रहे हैं, लोग परेशानी से देखती हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला फरमाती हैं, देखो अबू जर अकेला आ रहा है, ये अकेला चलता हुआ आ रहा है, ये जाकर कहीं अकेला ही रहेगा और अकेला ही मरेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, ये लोग कौन सुने रहती, अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी सुने रहती, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो बहुत फेमस है, जो बहुत इसमें भी जंगों में भी हिस्सा लिया। तो इनके मामलात क्या होती हैं बोले तो, इन्हों तो जाकर कहीं जिला वतन कर दिया ना, हजरत उस्मान गनी के दौर में इनको एग्जाइल कर दिए, तो जाकर इन्हों एक मदीने से बाहर एक शाहरा पर, शाहरा वही जो पहले कबीला इनका हुआ करता था, हाईवे, नेशनल हाईवे को शाहरा बोलते हैं। तो वहां जाकर अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रह जाती, वहीं गुजारा करते रहती। अब आखिरी वक्त आता है तो इन्हों क्या बोलती हैं, देखो मुझे एक काम करना, तुम बीवी से बोलती हैं और बच्चे से बोलती हैं, मुझे नहला धुला कर मेरा जनाजा तैयार करके शाहरा पर रख देना, रोड पर रख देना। अब वहां से जो भी आएगा, तुम तो क्या कर सकते हो, माँ बेटा, तुम कुछ भी नहीं करना, इतना काम करके जनाजा ले जाकर रख देना, जो भी वहां से आएगा वो मेरा काम कर देगा, तजीज़ तदफीन का काम या नमाज ये सब कुछ वो कर देगा। तो इन्हों ऐसा ही करती, ले जाकर रख देती। अल्लाह की करनी ऐसी होती है कि वहां से एक मुहिम आ रही है, मुहिम बोले तो एक जो एक्सपेडिशन भेजती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड नहीं है, किसका पीरियड है अब, हजरत उस्मान गनी की अच्छा, उस्मान गनी का, हाँ, ये हुजूर की प्रोफेसी थी। सो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त बहुत कमसिन बच्चे थे, अब उन्होंने कुछ उम्र के होंगे, अधेड़ उम्र के होंगे या 40 ऐसा कुछ होंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेडिशन के साथ आ रही, तो देखती ये जनाजा है, ये किसका जनाजा है, बाद में पता चलता है अबू जर गफ्फारी का। जल्दी आ जाता है, एकदम अचानक इनको याद आ जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये अकेला आ रहा है, अबू जर ये अकेला मरेगा, अकेला ये रहेगा, उसके बाद मरेगा भी अकेला। तो उनको याद आ जाता है, फिर उन्होंने सबको जमा करती, जनाजे की नमाज पढ़ती, दुआ करती, फिर उनकी तजीज़ व तकफीन करने के बाद आगे जाती। ये एक वाकया उनका दरमियान में था।